हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 6 of chapter MEOC, magnetic effect of electric current, class 10th. Okay, so today we are discussing about AC generator. ठीक है बेटा, AC generator means AC means alternating current, generator means we are getting some induced current over here. If I am talking about principle, then principle is EMI, electromagnetic induction, means we are making some change in magnetic flux, or you can say magnetic field lines per unit area, then we are getting some induced current in the surrounding coil. So here we have this N and S represent permanent magnet, this represent our permanent magnet. Okay, this ABCD coil, this is our armature, this S1 and S2 are slip ring, okay, this B1 and B2 are carbon brushes, and this G represent galvanometer. Okay, so if you remember the difference between galvanometer and ammeter, yes, galvanometer can detect even a very small amount of current, but not ammeter. Okay, so even a very small amount of current will induced in the circuit, then we get to know. That's why we use galvanometer over here. Okay, this is first half, this is second half. Okay, same thing is there, this is half rotation, this is next half rotation. Okay, that's why I wrote two different diagrams. So beta, if you remember that here we are using Fleming right hand rule in our generator. Okay, so the main thing is we are getting alternating current something like this. One cycle is positive and second cycle is negative. Positive and negative means beta that once we are getting direction of current maybe from ABCD, and second we are getting current from DCBA, like this. The direction of current will change, only this. So let's see beta, we are using Fleming right hand rule. Force, magnetic field, means father, mother, child. It represents force or direction of motion. First finger represent direction of magnetic field, and middle finger represent direction of magnetic field. So here the direction of magnetic field is like this, north to south, north to, this is direction of magnetic field. And suppose AB is moving outward like this, wait a minute. Okay, suppose that this is AB, this is our AB, and here is our XL, here is our XL, and due to this XL it will rotate in this direction. We are giving mechanical energy, means we are giving mechanical energy, and due to this AB moves like this. तो AB कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, and CD moves downward. ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, XL, जो मैंने पकड़ा हुआ है इसको XL हो गया, and it will rotate like this. Okay, so your AB will comes out and CD will goes in. ऐसा होगा, ये डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लेंगे. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया, ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ. AB कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है जी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, देखो डायरेक्शन ऑफ, ये देखो आउटवर्ड, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ है, अपवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगा, अपवर्ड होगा. इसी तरह से CD पे कैलकुलेट कर लो, जब AB बाहर आ रहा है तो CD कहाँ जाएगा, इनवर्ड. ये लॉजिक, ये इनवर्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ABCD. ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आई. उसके बाद क्या होगा बेटा, अब ये देखो ABCD में डायरेक्शन ऑफ करंट है. अब ये CD वाली जो वायर है ये किससे कनेक्ट है, B2 से, और जो AB वाली वायर है ये किससे कनेक्ट है, B1 प्लस से. ठीक है ना, तो इस बार डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, ABCD, और इस तरह से गैल्वेनोमीटर पे करंट पहुंचेगा. अब नेक्स्ट देखो, B1 किससे कनेक्ट है, S1 से ही कनेक्ट, और B2 किससे कनेक्ट है, S2 से ही कनेक्ट है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इस बार क्या होगा, देखो अब ये पहले हाफ रोटेशन किया और यहाँ आ गया ऐसे हाफ रोटेशन, तो अब होगा ना, और अब ये फुल रोटेशन होगा. देखो फिर से वही फेज दिख रहा है, मैं फिर बताता हूँ. ये फेज आपको दिख रहा था, हाफ रोटेशन हुआ, ये फुल रोटेशन हुआ, ठीक है ना, ऐसा होगा बेटा। तो देखो यहाँ पर जब ये हाफ रोटेशन हुआ था
तो अब यहाँ पर कौन आ गया, CD आ गया। पहले देखो यहाँ पर AB था ना, हाफ रोटेशन के बाद क्या आ गया, CD, और जहाँ CD था वहां क्या चला गया, AB चला गया। अब ACD कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा, और AB कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा। तो फिर से वही रूल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड। तो CD में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है इस बार, अपवर्ड, तो AB में ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट हो गया। पहले AB में डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड था, अब कैसा हो गया, डाउनवर्ड। तो एक बार पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी और एक बार नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी, और इस तरह से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा। इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर स्लिप रिंग लगते हैं, वहां पर स्प्लिट रिंग लग रहे थे, ठीक है ना। कार्बन ब्रशेस है यहाँ पर भी, वहां पर भी कार्बन ब्रशेस है, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है, ये आर्मेचर, ठीक है ना। जो अगर हम बात करें डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में आपकी स्प्लिट रिंग लगती है। आप ये भी कह सकते हैं डीसी जनरेटर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डीसी मोटर, ठीक है ना। जहां पर जनरेटर के अंदर आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो, अगर वहां पर आप बैटरी लगा दोगे तो फिर वो रोटेट करने लग जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई टॉय कार है आपके पास, उसके अंदर एक छोटी सी मोटर होती है, उस मोटर को अगर आप सेल से कनेक्ट करोगे तो वो रोटेट करेगी। अगर उतनी स्पीड से उसको रोटेट कराओगे तो फिर आपको वो सेल जितना एनर्जी प्रोवाइड, सेल जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो वो जो मोटर है वो डीसी मोटर है। टॉयज के अंदर जो मोटर होती है वो डीसी मोटर होती है, वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया आपका, वो है आपका डोमेस्टिक सर्किट। वो और करा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। चलो, डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है ना। नए घरों में जब हम कनेक्शन करते हैं फैंस के, एसी के, बल्ब्स वगैरह की, जो भी, वो सब हम पैरेलल में करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि हम पैरेलल में क्यों यूज करते हैं। ये चीज तो हम आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल में इसलिए किया जाता है ताकि सबको इंडिविजुअली ऑपरेट किया जा सके, सबको इक्वल पोटेंशियल दिया जा सके, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक सर्किट, एक डायग्राम बनाता हूँ। भाई देखो, हमारे पास जो सप्लाई आती है वो दो वायर्स की आती है, ठीक है ना। एक होती है न्यूट्रल वायर, ये, ठीक है ना, एक होती है न्यूट्रल, ठीक है, और एक होती है लाइव। जो न्यूट्रल वायर होती है वो रेड कलर की होती है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना वो रेड कलर की होती है मोस्टली, ठीक है ना। वैसे मत कहना कि सर रेड की तो नहीं थी, कोई भी कलर हो सकता है, पर मोस्टली रेड कलर होती है। उसका जो स्टैंडर्ड कलर है वो रेड ही है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कलर रेड है। उसके बाद ये जो है आपकी, ये लाइव वायर है। कौन सी वायर बोलते हैं इसको हम, लाइव, या इसको फेज भी बोल देते हैं, ठीक है ना, लाइव वायर, ठीक है जी। इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। तो अब ये सप्लाई हमें बाहर से मिली, उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं एक हमारा मेन एक स्विच लगाते हैं, या मीटर, पहले सबसे पहले मीटर होता है, ठीक है ना, ये मीटर। तो इस मीटर से हम यहाँ पर, ये दो पॉइंट है, ठीक है जी, एक जगह लाइव वायर कनेक्ट होगी और एक जगह न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी, ठीक है ना। इसको न्यूट्रल को नेगेटिव भी बोल दिया जाता है और लाइव को पॉजिटिव भी बोल दिया जाता है, ठीक है जी। हो गया कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक फ्यूज लगता है, ये यहाँ से वायरिंग आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, सॉरी लाइव वायर आ गई, और ये वाली हमारी न्यूट्रल वायर आ गई फ्यूज के पास। अब फ्यूज की अपनी एक रेटिंग होती है, ठीक है ना, फ्यूज की अपनी एक रेटिंग होती है। रेटिंग का मतलब क्या है कि फ्यूज कितने अमाउंट ऑफ करंट को बियर कर सकता है। जैसे मान लो ये फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पियर है, यानी अगर मान लीजिए जो भी पोटेंशियल हमें बाहर से मिला, वैसे तो घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट आता है, ठीक है ना। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा आ गया और यहाँ पर जो करंट बना वो 6 एम्पियर का बन गया मान लीजिए, तो ये फ्यूज आपका जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, देखो आपके पास ये फॉर्मूला होता है H = I²RT। तो करंट ज्यादा बन गया, ठीक है ना। करंट ज्यादा बनने से हीट एनर्जी ज्यादा बनी, और हीट एनर्जी की वजह से ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी। इसका मेल्टिंग, ये जो फ्यूज वायर होती है ना बेटा, इस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मेल्ट तभी होती है जब इसको हीट एनर्जी उतनी मिले, और हीट एनर्जी
इसकी हम ये ध्यान से बनाते हैं, इस तरह से फ्यूज वायर बनाई जाती है कि उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट तक तो वो हीट एनर्जी को सहन करता रहे, पर अगर उससे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। ये इसका मेन फंक्शन होता है फ्यूज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 5 एम्पियर करंट बनता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतनी हीट एनर्जी ये बियर कर लेगा। पर अगर इससे ज़्यादा बनेगा तो ये फिर फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज आपका ब्रेक हो जाएगा। और फ्यूज ब्रेक होते ही सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ओपन हो गया, और सर्किट ओपन हो गया तो आगे जितने भी अप्लायंसेज है वहां तक वो सप्लाई नहीं पहुंची। तो फ्यूज लगाने का फायदा क्या है कि अगर गलती से सप्लाई ज्यादा आती है तो हमारे अप्लायंसेज बच जाएंगे, वो जलेंगे नहीं, सेफ रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फ्यूज का बेनिफिट, ठीक है ना। अब इस फ्यूज से फिर से दो वायर निकलेंगी बेटा, एक लाइव वायर निकलेगी और एक आपकी न्यूट्रल, ठीक है ना। ये दो वायर निकलेंगी आपकी, या कुछ सर्किट्स में घरों में ऐसा भी कर देते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल को कनेक्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट लाइव वायर में ही फ्यूज लगाते हैं और ये जो न्यूट्रल है ना ये यहाँ से ही उठा के लाते हैं, यानी जो न्यूट्रल वायर है हमारी वो ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे, ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी, ठीक है ना। न्यूट्रल को डायरेक्ट ले आते हैं और लाइव वायर को फेज पे लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये बोर्ड लग गए अलग अलग, देखो ये अलग अलग तीन, मैं दो प्लग से बता देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक और वायर इंट्रोड्यूस करूंगा बेटा, देखो एक तो मैं एक मिनट, ये लो, ये मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया, चलो ऐसे लगा देते हैं, ये एक स्विच लगाया और स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से एक और ज्वाइंट किया मैंने यहाँ पर और एक स्विच लगाया और स्विच के साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, और जो लाइव वायर जो आपकी न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर जो है वो एक यहाँ पे कनेक्ट हो गई और यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस प्लग के ऊपर न्यूट्रल भी आ गया और लाइट भी आ गया। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ पर आ जाएगी दोनों चीज़ें। अब एक और काम, एक वायर और लगाते हैं यहाँ पर इसको तो बोलते हैं वायर ओवरलैपिंग, आपको पता होगा, ठीक है ना। वायर ओवरलैपिंग बोलते हैं, यानी वायर को बिना टच किए। अच्छा, तो ये जो वायर होती है हमारी ग्रीन कलर की होती है, इसको हम आर्क वायर बोलते हैं, आर्क वायर। और ये जो आर्क वायर है बेसिकली आपकी जो है ना हर उस इंस्ट्रूमेंट, हर उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में होती है जो मेटेलिक बॉडी का होता है, मोस्टली ज़्यादातर वहाँ जरूर खोल रखते हैं हमेशा, चाहे आपको फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन है, चाहे एसी है, जितने भी इक्विपमेंट है जो मेटेलिक बॉडी के बने होते हैं वहाँ पर आर्क वायर लगाना जरूरी है। और इस आर्क वायर को फाइनली कहाँ कनेक्ट कर देते हैं हम, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड में, इस तरीके से, यानी धरती में घर के अंदर थोड़ा छोटा सा गड्ढा खोद के और उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट दबा देते हैं और उस प्लेट के ऊपर ये वायर कनेक्ट कर देते हैं। फायदा क्या होता है बेटा इससे, अगर गलती से मान लीजिए कहीं पर न्यूट्रल और लाइव वायर कनेक्ट हो गई तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, उस बॉडी की मेटेलिक कंटेनर के ऊपर, मेटेलिक बॉडी के ऊपर जाएगा, और मेटल के ऊपर जो करंट जाएगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। हमारे यहाँ डिवाइस सेफ रहेगा। किसी को करंट में अगर मान लीजिए कोई उसको यूज कर रहा है और गलती से वायर कनेक्ट हो गई तो सारा का सारा करंट उसको ना लगते कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसको अर्थिंग भी बोल देते हैं, अर्थिंग, या इसको ग्राउंडिंग भी बोल देते हैं, ग्राउंडिंग, ठीक है ना। भाई हमने सारा का सारा करंट जो है वो ग्राउंड कर दिया। तो क्या है हमारे पास, एक न्यूट्रल वायर है, एक लाइव वायर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 220 वोल्ट सप्लाई आती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये हमारा मीटर लग गया, ठीक है ना। उसके बाद ये लाइव वायर के साथ हमने फ्यूज लगा दिया। फ्यूज की अपनी एक रेटिंग है, अगर उतना करंट आएगा तो फ्यूज को कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा आएगा तो वो हीट एनर्जी की वजह से फ्यूज हमारा ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ में अलग अलग स्विचेस के साथ ये जो मैंने प्लग आपको दिखाए, ये हमारी आर्क वायर है, ठीक है। तो ये जो रेड मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर दिखा है तो मैं आपको आर्क वायर ग्रीन से दिखा देता, क्योंकि आर्क वायर का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइव हो गया, ये न्यूट्रल, ये लाइव, ये न्यूट्रल, और ये दोनों हमने और स्विच लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर बात समझ आ गई। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर, सोर्स सर्किट एंड ओवरलोडिंग, ये दो पॉइंट आप नोट करोगे इसमें, लास्ट टॉपिक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक ही पॉइंट से एक ही प्लग के अंदर हमने एक ही सॉकेट के अंदर एसी का भी वही लगा दिया, फराटे का भी, कूलर का भी,
पंखे का भी, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जो है, बहुत सारे डिवाइसेस जो है एक ही सॉकेट से कनेक्ट कर दिए। सो मेनी appliances are connected at a particular socket। ठीक है ना, एक ही सॉकेट में बहुत सारे, अगर मैं बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देता हूँ तो वहाँ पर लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर करंट की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के लिए सर्किट हमारा ब्लॉक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट आएगा तो हीट एनर्जी बनेगी तो वायर जल जाएगा, उतना ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में भी वायर जल जाती है, कई बार एक ऐसे होता है शॉर्ट सर्किट में भी वायर जल जाती है। तो शॉर्ट सर्किट में और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है, इधर जो सप्लाई आ रही है वहाँ पर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है ना वायर के ऊपर, रबड़ की या प्लास्टिक की जो इंसुलेशन होती है, अगर गलती से वो उतर जाए तो आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और उस कनेक्शन की वजह से एक हल्का सा स्पार्क होता है या बहुत भारी स्पार्क भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल है। तो वो जो स्पार्क जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। जब लाइव और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया तो वो होगा आपका एक स्पार्क, उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। और जब एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस हमने कनेक्ट कर रखे हो उसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। ठीक है, तो बस इतना ही। चैप्टर आपका कंप्लीट है, फिर जो डाउट होगा आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच।